वेलकम अगेन माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में रिलेशन के थ्योरी प्लस उसके एग्जाम्पल किए थे और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था। आज अपन उसके आगे करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आखिरी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, R on Z is defined by R is equal to set of all x comma y such that x minus y belongs to Z. x minus y is an integer. इसको हमें चेक करना है कि whether it is reflexive, symmetric और transitive। ठीक है साहब। We have x minus x क्या होता है? 0 which belongs to Z. 0 is an integer which implies that x comma x belongs to R. R is reflexive. ये reflexive हो गया। Symmetry के लिए let x comma y belongs to R. Relation R implies that x minus y belongs to Z. Let x minus y is equal to some k or y minus x is equal to minus k which also belongs to Z. अगर देखो x माइनस वाई कोई इंटीजर है तो y माइनस एक्स यानी कि माइनस के भी एक इंटीजर होगा। 5 एंड माइनस 5 दोनों इंटीजर होते हैं। ये इंटीजर होने का मतलब क्या है? y कोमा x ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू z और r और r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव के लिए। लेट x कोमा y belongs to R, y कोमा z belongs to R. That is x minus y belongs to z, y minus z belongs to z. Z means integer। देखो x minus y R का member x related to y means x minus y is an integer. Y is related to z means y minus z is an integer. Let x minus y is equal to some p and y minus z is equal to some q. Adding this and this, so x minus y plus y minus z is equal to p plus q. और y से y कट गया, x minus z is equal to आ गया से n, where n is your p plus q. अपन जानते हैं दो इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होता है। अब देखो x minus z एक इंटीजर आ गया means x comma z belongs to R. R is transitive. It is reflexive, symmetric and transitive. Hence it is an equivalence relation. अगला देखिए फिफ्थ पार्ट के कई पार्ट्स हैं। फिफ्थ के कई पार्ट्स हैं। फिफ्थ का ए इसमें आर रिलेशन A is a set of human beings. And R be the relation that set of all x comma y such that x and y work at the same place. X, y work at the same प्लेस। ठीक है साहब। अब रिफ्लेक्सिव करें इसको, पहले रिफ्लेक्सिव करें। वी हैव x कोमा x वर्क एट द सेम प्लेस। देखो x है, x और x लिख सकते हैं अपन। x कोमा x वर्क एट द सेम प्लेस implies that x comma x belongs to R. R is reflexive.
रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अपन ऊपर लिख लेते हैं। सिमेट्रिक में अपन लिखेंगे भाई लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब निकलेगा x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस तो मीन्स y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, y and x work at the same place means y comma x belongs to R. So R is symmetric. इसके बाद फिर अपन ट्रांजिटिव कर लेंगे। Let x comma y belongs to R, y comma z belongs to R. x and y work at the same place and इस तरीके से सिमेट्री करें। सिमेट्री के लिए let x comma y belongs to R। ये ऑर्डर पेयर माना हमें प्रूव करना है सिमेट्री के लिए y, x ऑर्डर पेयर y, x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट ब्रैकेट x, y वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस, ठीक है साहब। और y एंड x work at the same place implies that ordered pair y comma x belongs to R. R is symmetric. Symmetric हो गया। ट्रांजिटिव के लिए let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. Then we have to prove x comma z belongs to R. x, y का मतलब क्या होगा? देखो x, y belongs to R implies that without bracket x, y work at the same place, y, z belongs to R implies that y, z without bracket work at the same place. Therefore, x, y, z work at the same place. कारण क्या है? देखो y दोनों में कॉमन है। जहाँ पे x, y काम सेम प्लेस पे काम करते हैं, y, z भी सेम की प्लेस पे काम करते हैं, तो x, y, z तीनों सेम प्लेस पे काम करेंगे। We are interested in x and z. x, z work at the same place. So ordered pair x, z belongs to R. R is transitive. It is reflexive, symmetric and transitive. It is an equivalence relation. ठीक है? It is an equivalence relation. Next question देखें। देखिए मैं पूरे स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, आपको भी शॉर्टकट में नहीं चलना। एकदम इसकी लैंग्वेज आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए किस तरीके से लिखते हैं, सिमेट्रिक के लिए किस तरीके से लिखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। ये है आपका इसका बी पार्ट है आर, वही सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग वाले सेट के ऊपर डिफाइंड है ये। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, y such that x, y live in the same locality. X, y lives in the same locality. देखो मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सेम लाइंस में स्टेटमेंट लिखनी है अपन। मैं बोल के बता देता हूँ आपको, पिछले क्वेश्चन की तरह से ही लिख लेना। क्या लिखेंगे? Without bracket x, नहीं सॉरी, without bracket we have without bracket x, x work lives in the same locality. So ordered pair x, x belongs to R. R is reflexive. Symmetry के लिए let ordered pair x, y belongs to R means without bracket x, y lives in the same locality means y, x live in the same locality means ordered pair y, x belongs to R. R is symmetric. ट्रांजिटिव के लिए let x, y belongs to R, ordered pair y, z belongs to R means x and y lives in the same locality, y, z lives in the same locality, x, y, z lives in the same locality, x, z lives in the same locality. Therefore ordered pair x, z belongs to R.
R is transitive. It is reflexive, symmetric and transitive. It is an equivalence relation. बिल्कुल वैसे के वैसे स्टेटमेंट लिख देना, लिव्स इन द सेम लोकेलिटी करके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट। इसका सी पार्ट है आर रिलेशन दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y। इसको रिलेशन के बारे में हमें कमेंट करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए देख लिखिए, we have x is not 7 centimeter taller than x, which implies that x comma x does not belongs to R. R is not reflexive. रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के लिए let x comma y belongs to R implies that x is 7 centimeter taller than y. Y is 7 centimeter smaller than x, but we are not interested in smaller. taller है या taller नहीं है, और y is not 7 centimeter taller than x. Therefore y comma x does not belongs to R, तो not symmetric, not symmetric, ठीक है। ये हो गया। ट्रांजिटिव के लिए let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. X is 7 centimeter taller than y. Y is 7 centimeter taller than z. So x is 14 centimeter taller than z. लेकिन 14 सेंटीमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है 7 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर नहीं है। x is not 7 centimeter taller than z. So x comma z does not belongs to R, so not transitive. So R is neither reflexive, nor symmetric, nor transitive. ठीक है साहब, ये अपना कमेंट होगा। देखो स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं ना, ये बच्चे यही कहते थे कि सर समझ में आ गया, लेकिन स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम आती है। और बेटा इसमें नंबर भी काटता था। सारे स्टेटमेंट आपको मीनिंगफुल लिखने हैं। जहाँ ऑर्डर पेयर हो ऑर्डर पेयर, और जहाँ ऑर्डर पेयर नहीं करना, लिस्ट करने एलिमेंट, तो वहाँ पे मतलब प्रॉपरली आपको प्रेजेंट करना है, तभी इसमें नंबर मिलेंगे ढंग से। स्टेप मार्किंग होती है, ढंग से करना है। अगला देखिए, इसका है डी पार्ट। डी पार्ट है सेट ऑफ आर। आर जो दिया वो वही ए के ऊपर है। सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट x is wife of x, x is wife of y। ठीक है साहब, ये हमें प्रूव करना है, उसके कमेंट करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में। करिए आप, देखो x is not wife of x, x is not wife of himself, ठीक है, which implies that x comma x does not belongs to R, तो ये हो गया not symmetric।
नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है साहब। सिमेट्री के लिए लेट x, y belongs to R, or x is wife of y, or y is husband of x. But we are not interested in husband, wife है या wife नहीं है, और y is not wife of x, which implies that y comma x does not belongs to R, not symmetric. अब ये ध्यान से देखना भाई, ये ध्यान से देखना ट्रांजिटिव का। लेट x comma y belongs to R, x is wife of y, but y is not wife of any z। ये ऑलरेडी इसका हस्बैंड है, तो x का हस्बैंड किसी z की वाइफ हो सकता है क्या? नेवर। अब अपन क्या लिखेंगे देखो कंक्लूजन में, x, y belongs to R, but y, z does not belongs to R, which implies that R is transitive. ये टेक्स्ट बुक में आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ये ट्रांजिटिव है, इन्होंने नॉन ट्रांजिटिव कहा है। अगेन जैसे मैंने उस एग्जांपल में आपको बताया था ना, अगर ए बी हो बी सी हो ही ना तो वो ट्रांजिटिव होता है, तो इसलिए इसको भी ट्रांजिटिव आप लिख के आएंगे। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट है, आर रिलेशन दिया हुआ है, set of all x, y such that x is father of y। ठीक है साहब, x is father of y, इसको चेक करना है। x is not father of x, which implies that x, x does not belongs to R, ये हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए लेट x, y belongs to R implies that x is father of y, y is son of x। सन से मतलब नहीं है फादर है या फादर नहीं है, y is not father of x, therefore y, x does not belongs to R, R is not symmetric। ट्रांजिटिव के लिए मैं चेक करवा देता हूँ, ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करवा देता हूँ मैं। अपन उसमें लिखेंगे लेट x, y belongs to z, y, z belongs to x, y belongs to R, y, z belongs to R। देखो ये तो बिलोंग करेगा इसमें y, z, अभी मैं बता देता हूँ इसको, क्योंकि x is father of y, x is father of y and y is father of z। ये हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वाइफ के केस में वो पॉसिबल नहीं था कि b, c बिलोंग्स टू R हो जाए, इसलिए अपन ने कहा है था उसमें कि x, y बिलोंग्स टू R बट y, z डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन यहाँ पे आपका y, z बिलोंग्स टू R होगा। देखिए साहब, लेट x, y belongs to R, y, z belongs to R, x is father
father of y and y is father of z. So x is grandfather of z. ग्रैंडफादर से हमें मतलब नहीं है फादर है या फादर नहीं है. x is not father of z implies that x comma z does not belongs to R, so not transitive. It is not transitive. देखो not transitive क्यों हुआ है? यहाँ पे एक्स वाई है, वाई जेड है, लेकिन एक्स जेड नहीं है. दोनों में अंतर रखना. देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, बट एक्स जेड इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें आर ऑन आर रियल नंबर. A relation R is defined on the set of real numbers such that R is equal to, ये दिया हुआ है साहब हमें A, B such that A is less than or B square. इसको आपको प्रूव करना है. It is neither reflexive nor symmetric nor transitive. अब इसमें मेरा आपसे कहना है कि यहाँ तो क्वेश्चन में लिख दिया इन्होंने कि प्रूव दैट इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. तो आप इसको यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि साहब चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कभी भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव. क्योंकि आप देखो 1 से बड़े नंबर लोगे ना तो ये हमेशा ट्रू आता रहेगा. तो इसके लिए मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम्पल एकदम ध्यान में ही रख के चलो. ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों को एक तरीके से ही करेंगे अपन. लिखो जरा नॉट रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे. देखो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर. दूसरी बात यहाँ पे इक्वल टू मत लगाना क्योंकि ये ए और बी है, इसलिए आई लेस देन और इक्वल टू लगाया. यहाँ पे क्लियर पता है कि ये नॉट लेस देन है, इक्वल टू की बात ही नहीं करेंगे. implies that 1/2 does not belongs to R. R is not reflexive. 1 से बड़ों के लिए सारा के लिए ट्रू होगा, लेकिन 1 से छोटा नंबर ले लो, फिक्स कर लो 1/2 से चेक करना है हमें. इसमें भी और क्वेश्चन नंबर 5 में भी. अगला देखिए 1 is less than 2 का स्क्वायर means 1, 2 belongs to R, but 2 is not less than 1 का square implies that 2, 1 does not belongs to R. Not symmetric. Not symmetric आ गया. ट्रांजिटिव के लिए देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है. 2 का या 3 का स्क्वायर होता है 9. 3 का स्क्वायर होता है 9. तो 8 इज लेस देन 3 का स्क्वायर implies that 8, 3 belongs to R. 3 is less than 2 का स्क्वायर implies that 3, 2 belongs to R. But 8 is not less than 2 का स्क्वायर implies that 8, 2 does not belongs to R. R is not transitive. कैसे किया देखो 8 is less than 3 का स्क्वायर means 8, 3 belongs to R. 3 is less than 2 का स्क्वायर 3, 2 belongs to R. But 8 is not less than 2 का स्क्वायर. AB है, BC है, but AC is not there. AC is not there. So it is not transitive. तो भाई ये दो तो कॉमन रख लेना क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 5 में. ये ही दोनों, वो क्यूब का है, ये स्क्वायर का था. और उसमें भी कोई 3 का क्यूब 27 होता है, तो बिल्कुल सिमिलर है और इम्पोर्टेंट है. ध्यान रखना क्यूब वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करना. अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया हुआ है साहब, चेक वेदर द रिलेशन आर, ए सेट दिया हुआ है हमें 1 से लेके 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है। और रिलेशन आर दिया हुआ है हमें सेट ऑफ ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो इसको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक करना है। ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर में लिख लो, ए को वैल्यू असाइन करो, बी की वैल्यू निकालो। ए है, ए टू ए है, मतलब ए और बी दोनों ए के मेंबर हैं। आर को रीराइट कर लो, देखो ए को दी वैल्यू मैंने 1, तो बी कितना आ जाएगा 2, ए को दी वैल्यू 2, तो बी कितना हो जाएगा 3, 3 पे आ जाएगा 4, 4 पे आ जाएगा 5, 5 पे आ जाएगा 6, बट वी कांट असाइन द वैल्यू 6, 6 देंगे तो 7 आ जाएगा विच इज नॉट देयर। तो ये तो आपका रोस्टर फॉर्म में बन गया, चेक कर लो। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 1, 1 does not belongs to R, not reflexive। कोई एक एग्जांपल दे देना नॉट रिफ्लेक्सिव का, तो एंटायर रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। देखो 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R, not symmetric। नॉट सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 है, 2, 3 है, बट 1, 3 इज नॉट देयर। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांजिटिव। इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आर ऑन आर, आर इन आर, ये रियल नंबर पे डिफाइंड है, सच दैट आर इज इक्वल दिया हुआ है हमें सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। देखो इसको क्या लिखते हैं अपन, लेस देन और इक्वल टू। अगर लेस देन होगा तो भी ट्रू होगा, इक्वल होगा तो भी ट्रू होगा, लेस देन और इक्वल टू कहते हैं। ठीक है साहब, वी हैव a is equal to a, equal to आ गया, it means a belongs to r is reflexive। सिमेट्री के लिए या तो देखो a भी लोगे तो इन जनरल कह दोगे, और b a लोगे तो 1 is less than 2। तुम तो एग्जाम्पल लेके बता दो यार। 1 is less than 2 implies that 1, 2 belongs to R, but 2 is not less than 1 implies that 2, 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। R is not symmetric। ट्रांजिटिव के लिए देखो A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A C से छोटा होगा, तो इसको थ्योरेटिकली लिख दो। We have या मान लो let A, B belongs to R, B, C belongs to R, implies that A is less than or equal to B and B is less than or equal to C, implies that A is less than or equal to C। बड़े आराम से होगा, A B से छोटा है, B C से छोटा है, तो A C से छोटा होगा, which implies that A, C belongs to R, R is transitive।
इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। शायद हमें यही प्रूव करना था। इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है क्या? हाँ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव क्या प्रूव करना था? देखें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हाँ, बस यही करना था। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब पांचवा बड़ी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको भी ध्यान से करना है भाई। ये 1/2 का इसका ध्यान में रखना। वहां पे अगर सोचने बैठने गए ना, अपन सोचने बैठ गए तो अपना अननेसेसरी टाइम चला जाएगा। एक तो इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में करना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव हैं, और फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिए सेम नंबर्स लेने हैं अपने को, जिससे अपने को सोचने में ज्यादा टाइम नहीं मिले। और आया तो ये 3 नंबर दिलाएगा आपको, 3 या 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया हुआ है R on R, R in R, given by R is equal to दिया हुआ है set of all A, B such that A is less than or equal to B cube, A is less than or equal to B cube। अब इसमें देखो लिख दिया इन्होंने, check whether the given relation is reflexive, symmetric, transitive। आपको पता चाहिए होना चाहिए कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। इस पर निशान लगा लेना इन दोनों क्वेश्चनों पर। जब भी रिवीजन करो इनको ध्यान में रखना, और इनके सपोर्ट में क्या एग्जांपल देना है वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। वी हैव 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का होल क्यूब। वहां पे स्क्वायर किया था, यहाँ क्यूब कर दो। इंप्लाइज दैट 1/2, 1/2 does not belongs to R, not reflexive। सिमेट्री के लिए 1 is less than 2 का क्यूब, implies that 1,2 belongs to R। 2 is not less than 1 का क्यूब, implies that 2,1 does not belongs to R। So R is not symmetric। नॉट सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखो, 3 का क्यूब देखो, 3 के 9 होती है, 27 होता है। 27 से छोटा कोई ले लो, 25 ले लो, 26 ले लो। 26 इज लेस देन 3 का क्यूब, implies that 26,3 belongs to R। 3 is less than 2 का क्यूब, implies that 3,2 belongs to R। But 26 is not less than 2 का क्यूब, implies that 26 2 does not belongs to R, not transitive। कैसे? AB belongs to R, BC belongs to R, but AC does not belongs to R, AC does not belongs to R, so it is not transitive। It is neither reflexive, not symmetric, not transitive। Next question देखिए, छठा क्वेश्चन नंबर 6। A सेट हमें दिया हुआ है जिसपे डिफाइंड है 1, 2, 3, और रिलेशन R दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1। इस पे कमेंट करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या? सीधा है भाई। इसमें लिख दो आप 1 belongs to A but 1, 1 does not belongs to R, R is not reflexive। सिमेट्रिक के लिए कह दो 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, implies that R is symmetric। दोनों का रिवर्स मौजूद है। ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 belongs to R यानी कि AB, 2, 1 belongs to R यानी कि BC है। तो A, C क्या हो जाएगा? 1, 1 does not belongs to R, 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belongs to R, so it is not transitive। It is neither reflexive, it is symmetric but neither reflexive nor transitive। सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, ये भी देखो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिल्कुल ऐसे 3-4 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ए दिया हुआ है सेट
of all books of a library। आर रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल x, y such that x and y have same number of pages। ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हो, वो लोकेलिटी वाला, लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, वर्क एट द सेम प्लेस वाला बिल्कुल वैसा का वैसा है। क्या स्टेटमेंट बनेंगे देखो, वी हैव, मैं पूरा बोल के बता देता हूँ। We have without bracket x, x have same number of pages, so ordered pair x, x belongs to R, R is reflexive। Symmetry के लिए let ordered pair x, y belongs to R means without bracket x, y have same number of pages means y, x have same number of pages means ordered pair y, x belongs to R, R is symmetric। Transitive के लिए let x, y belongs to R, y, z belongs to R without bracket x, y have same number of pages, y, z have same number of pages, x, y, z have same number of pages, x, z have same number of pages, so ordered pair x, z belongs to R, so R is transitive, it is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। next question करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल में अगर तुमने ढंग से कर लिए ना तो इनको लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक जैसे स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन का पर्टिकुलर स्टेप आप दोबारा समझना चाहते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखें साहब अपन, क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का भी कर चुके हैं अपन। देखो ए सेट हमें दिया हुआ है जिसपे ये डिफाइंड है 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, और रिलेशन आर दिया हुआ है, आर रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल a, b such that mod of a minus b is even, mod of a minus b is even, और इसका अटैच पार्ट में दिया हुआ, इसको मैं मान लेता हूँ p 1 3 5, q ये आ जाएगा 2, 4। तो इसके दो पार्ट है। देखो इस रिलेशन R को तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, और इसमें हमें ये प्रूव करना है ऑल एलिमेंट्स ऑफ P विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ Q विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, नो एलिमेंट ऑफ P विल बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ Q। ये इसका अटैच पार्ट प्रूव करना है, वो तो एक लाइन की स्टेटमेंट लिख करके कर देंगे अपन। इसको पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करें। we have mod of a minus a is equal to 0. This can be written as 2 into 0, which implies that a comma a belongs to R. R is reflexive. Reflexive हो गया। Let a comma b belongs to R. देखो नंबर्स मत लेना, नंबर्स है लेकिन रखे रहने दो इनको। अगर नंबर को यूज किया आपने तो सारे दिखाने पड़ेंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, और ऐसे ही ए बी, हर एक ए बी बी सी दिखाना पड़ेगा, हर एक का ए बी बी सी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप ये कर दो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that mod of a minus b is even, implies that mod of b minus a is even, implies that b comma a belongs to R, R is symmetric। सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए लेट a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, mod of a minus b is even, mod of b minus c is
even, implies that mod of a minus c is even. देखो b दोनों में कॉमन है, a माइनस बी इवन है तो b माइनस सी भी इवन है, तो a माइनस सी भी इवन होगा, which means a comma c belongs to R. So it is reflexive, it is transitive. R is transitive. So it is an equivalence relation. अब अपन एक लाइन लिखेंगे, difference of two number will be even if both are either even or odd. देखो आप जानते हो दो ऑड नंबर का डिफरेंस इवन आता है, दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन आता है. अगर एक ऑड एक इवन हो ना तो डिफरेंस इवन नहीं होगा. अब लाइन लिख दो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ P will be related to each other as all are odd. Both element of Q will be related to each other as both are even. No element of P will be related to any element of Q because P is odd, Q is even. ये अटैच पार्ट हो जाएगा. इसके सपोर्ट में ये लाइन लिख लेना जो मैंने बोली है. All element of A will be related to each other as all are odd. Both element of Q will be related to each other as both are even. No element of P will be related to any element of Q because P is odd and Q is even. ये लिख लीजिए आप. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. 9th देखना है. इसके दो पार्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 9. ए सेट हमें दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू z 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12. और रिलेशन फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल a कॉमा b सच दैट a mod of a minus b is a multiple of 4. जैसे देखो mod a minus b को इवन कहा था ना आपने, सेम लाइंस में आप इसको कर देंगे. मैं बोल के बताऊं आपको. we have mod of a minus a is equal to 0 which is equal to 4 into 0. वहाँ पे अपन ने लिखा था 2 into 0 इवन दिखाने के लिए. 4 का मल्टीपल दिखाने के लिए 4 into 0 मीन्स a कॉमा a बिलोंग्स टू r. हो गया रिफ्लेक्सिव. सिमेट्री के लिए लेट ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, then a minus mod of a minus b is a multiple of 4. Therefore mod of b minus a is a multiple of 4. क्योंकि पॉजिटिव डिफरेंस है. ये 4 का मल्टीपल है तो b माइनस a भी 4 का मल्टीपल होगा. तो ऑर्डर्ड पेयर b कॉमा a बिलोंग्स टू r. r इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r. mod of a minus b is a multiple of 4. mod of b minus c is a multiple of 4. Therefore a minus c mod of a minus c is a multiple of 4. So ordered pair a comma c belongs to r. r is transitive. r is transitive. It is reflexive, symmetric and transitive. Hence it is an equivalence relation. ठीक है. सेम लाइन से जैसे इवन वाला किया था ना, बस उसकी जगह 4 का मल्टीपल बताना है. सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट आर रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल a comma b such that a is equal to b. ये भी और बड़े orally हो जाएगा. we have a is equal to a implies that ordered pair a comma a belongs to r. r is reflexive. reflexive हो गया सिमेट्री के लिए. let a comma b belongs to r implies that a is equal to b implies that b is equal to a
implies that b comma a belongs to r. a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा. It means b comma a belongs to r. r is symmetric. सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिव के लिए लेट a comma b belongs to r, b comma c belongs to r. a is equal to b and b is equal to c implies that a is equal to c, which implies that a comma c belongs to r. r is transitive. r is reflexive, symmetric and transitive. So it is an equivalence relation. It is an equivalence relation. Next question देखें. Next question है आपका क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. इसमें आपसे एग्जाम्पल लिखवाया है कि इसके लिए अपन देखो सेट ए तो ले लेते हैं, द सेट 1, 2, 3. और फर्स्ट पार्ट में अपने से पूछा है, तीनों पार्ट भी अपन ये ले लेते हैं, जो कि सिमेट्रिक तो यस और रिफ्लेक्सिव नो, ट्रांजिटिव नो. ऐसा रिलेशन बताइए विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. सेट हमने ये ले लिया, तीनों चारों पार्ट के लिए यही सेट रखेंगे. तो इसका एग्जांपल देखो क्या बन सकता है. आर इज इक्वल टू, ये रिफ्लेक्सिव का है भाई और ये रिलेशन का आर है. आपको चाहिए सिमेट्रिक, तो इसको कर दो आप 1, 2 एंड 2, 1. दैट्स ऑल. रिफ्लेक्सिव हो गया, ए बी है, बी सी है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक हो गया. रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, एंड सो ऑन. सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या पूछा है. ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव पे यस, रिफ्लेक्सिव पे नो और सिमेट्रिक पे नो. गिवन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक. तो ट्रांजिटिव के लिए आर, ये आप क्या देंगे? 1, 2 दे दो, 2, 3 दे दो एंड 1, 3 दे दो. बंद कर दो इसको. ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? 1, 1 नहीं है. सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1, 2 है, 2, 1 नहीं है. ये हो गया. थर्ड पार्ट देखिए इसका. थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव यस, सिमेट्रिक यस, ट्रांजिटिव नो. ये हमें बताना है. रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. तो इसमें ले लो द सेट. रिफ्लेक्सिव लेना है तो आएगा 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3. ये तो बाई फोर्स हमें लेना पड़ेगा. रिफ्लेक्सिव बना दिया. सिमेट्रिक के लिए ले लो 1, 2. 1, 2 लिया तो 2, 1 भी लेना पड़ेगा. तो ये ट्रांजिटिव भी ऑटोमेटिकली हो गया. देखो ए बी है, बी सी है, ए सी है रहा. अगर इसको देखें अपन, ए बी है, बी सी है, तो ए सी 2, 2 ये भी है रहा. तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए 1, 3, 3, 1 और ले लो. तुम 1, 3, 3, 1 और ले लो. अगर हम 1, 3 लेंगे देन बाई फोर्स हमें 3, 1 भी लेना पड़ेगा. अब इसको डब्बा बंद कर दो. देखो अब मैं बताता हूँ ट्रांजिटिव कैसे डिस्टर्ब हुआ. इसका ट्रांजिटिव अब नहीं रहा ये. देखो 2, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 3 belongs to R, but 2, 3 does not belong to R. So it is not transitive. ये रिलेशन है. रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे? 2, 1 belongs to R, 1, 3 belongs to R, and 2, 3 does not belongs to R. So it is not transitive. It is not transitive. एक एक नंबर में आपसे एग्जाम्पल लिखवा सकते हैं. ठीक है, करिए. नेक्स्ट 3 पार्ट कर लिए अपन ने. और देखिए
अगला क्या एग्जांपल देना है रिलेशन का, वही 1 2 3 है। देखो ए सेट अपने सामने रहना चाहिए, ये है 1 2 3, इस पे डिफाइन कर रहे हैं अपन रिलेशन। फोर्थ पार्ट इसमें है रिफ्लेक्सिव यस, ट्रांजिटिव यस, सिमेट्रिक नो। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो रिफ्लेक्सिव है तो आर हमें लेना पड़ेगा बाई फोर्स 1 1 2 2 3 3, ये तो तीनों आएंगे ही। और ट्रांजिटिव है तो 1 2 2 3 1 3 ले लो, जिससे ये सिमेट्रिक नहीं हो। अगर 1 2 2 1 ये ले लिया ना आपने, इसको ले लो 1 2 2 3 1 3, दैट्स ऑल। रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि तीनों हैं, ट्रांजिटिव हो गया ए बी बी सी ए सी है तो, और सिमेट्रिक क्यों नहीं है, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, द लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट। सिमेट्रिक यस, ट्रांजिटिव यस, रिफ्लेक्सिव नो। ठीक है, ये बनाओ इसको, इसमें रिफ्लेक्सिव को डिस्टर्ब करना है। आर रिलेशन दे दीजिए 1 1 एंड 2 2 1 2 2 1, दैट्स ऑल। देखो सिमेट्रिक है क्योंकि हर एक का रिवर्स इसमें मौजूद है। 1 1 का 1 1 2 2 है, 1 2 का 2 1 है, सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव है, देखो ए बी बी सी तो ए सी हो जाएगा 1 1 ये। और अगर मैं इसको ए बी इसको देखूं ए बी बी सी तो ए सी क्या होगा 2 2, दिस इज देयर। इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, 3 belongs to A but 3 3 does not belong to R, so not reflexive. It is the example of a relation which is symmetric and transitive but not reflexive. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, रिलेशन आर दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। और हमें दिया हुआ है आर रिलेशन दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल पी क्यू, पॉइंट है इसलिए कैपिटल ले लिया है। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हमें दिया हुआ है। इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। पी है ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, विच implies that P P belongs to R, R is reflexive. सिमेट्री के लिए let P Q belongs to R implies that OP is equal to OQ, implies that OQ is equal to OP, implies that Q P belongs to R. ये सिमेट्रिक हो गया। R is सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए let P Q belongs to R, Q S, R मतलब S ले लो, belongs to R, implies that OP is equal to OQ and OQ is equal to OS, implies that OQ कॉमन हो गया ना, OP is equal to OS, implies that P S belongs to R, R is transitive, R is transitive. It is reflexive, symmetric and transitive. इसके अटैच पार्ट में ये भी पूछा है कि इस पॉइंट P का लोकस क्या होगा, तो अपन ये लिखेंगे लोकस ऑफ द पॉइंट विल बी ए सर्किल,
whose radius is the origin O and radius is OP and center at O. origin तो सेंटर हो जाएगा और ये हो जाएगा सर्किल का के लोकस की क्या डेफिनेशन होती है, फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहती है. सो locus of the point will be a circle whose center is O and radius is OP. ये हो गया. अब देखो अपन यहाँ आज छोड़ देते हैं. 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास के 5 मिनट में शुरू के ये बचे हुए 2-3 क्वेश्चन करा के मैं सीधा फंक्शन स्टार्ट करूंगा. ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, ये बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद सीधे फंक्शन का अपन काम करेंगे. ठीक है, बहुत जल्दी अपन दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बाय.